Hello friends, welcome back to my channel. Today we shall discuss module 2 of paper 1, data, information and knowledge. In the previous video we have learned about knowledge society. Okay, let's see here our topic. First here इंट्रोडक्शन. हम जानते हैं डाटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होता है, फिर नॉलेज क्या होता है. तो ये बहुत बेसिक टॉपिक है, इसको ठीक से समझना है. In actual usage, the connotation of the term data, information and knowledge frequently overlap. तो हम जब ये तीनों वर्ड को पढ़ते हैं तो हम तीनों एक जैसा लगते हैं, लेकिन दोनों तो ये तीनों सेम नहीं है. Often they are used as synonyms. There are various definition and these are so models of over the past few years that the various definition does not even match and each reflect a particular viewpoint or approach. लेकिन तीनों डेफिनेशन सेम नहीं होते हैं. वाइल इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस एज LIS प्रोफेशनल टू अडॉप्ट ए पर्टिकुलर व्यू पॉइंट एंड पर्सपेक्टिव इन आवर डिस्कशन. अगर हम LIS प्रोफेशनल जो होते हैं, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस वाले, ये तीनों को ठीक से अच्छे से जानना होगा. इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट अस फॉर अप टू एन आइडिया ऑफ वेरियस कॉन्टेक्स्ट एंड द अप्रोचेस टू अंडरस्टैंडिंग एंड डिफाइनिंग दिस टर्म. As mentioned earlier, while these terms are used as synonym, there are difference in their meaning and connotation, and it is important to understand this difference. ठीक है, तो ये तीनों टर्म में सेम किया है, डिफरेंट किया है, जानते हैं. पहले जानते हैं डाटा. Etymology and meaning. The word data is plural of the now rarely used term datum. Datum का ये plural form data है, which derive from the Latin word dare meaning to give up or something given. तो dare का meaning जो Latin में क्या है, देना, to give up. It is in this sense that the word is used in geometry and engineering. इसको बहुत सारे यूज किया जाता है. It is from this usage that connotation of term is understood and employed in data processing in the context of computer science. तो कंप्यूटर साइंस में इसका बहुत सारा यूज है. In the domain of map making, geography and technical drawing, the word datum means reference datum where from distance to all other data are measured. Any measurement or result is a datum. तो datum क्या होता है, किसी को मेजर करना है, इसको हम datum कहते हैं. However, increasingly the term data point is being used now to convey this meaning. The term is used both as a mass noun and as a plural depending on the preference of user. In scientific writing, data is often used as a plural, although in the particular usage it is used in singular. ठीक है, तो साइंटिफिक टर्म में देखा जाएगा तो ये प्लूरल के फॉर्म में यूज होता है, बट इसको सिंगुलर में भी हम यूज कर सकते हैं. द फैक्टर हैज लीड टू सम डिफिकल्टी इन clearly defining the term of its usage, what is now widely referred to as digital humanity. Given the highly subjective and interpretive nature of humanity, the use of term could lead to some issue. The sense in which the term data is widely used today is referred to set of values of quantitative and qualitative variables. ठीक है. फॉर्मेट ऑफ डाटा, तो डाटा के बारे में कुछ बेसिक चीज़ हमें पता चला, तो हम जानते हैं और जानते हैं इसके बारे में. फॉर्मेट ऑफ डाटा रिप्रेजेंटेशन, डाटा को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सके. डाटा को हम बहुत सारे फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि टेबुलर फॉर्म, टेबल में लिख सकते हैं रो कलम बना के. फिर हायरार्किकल फॉर्म, हायरार्किकल फॉर्म क्या होता है, जो कि जेनस टू स्पेसीज या पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, हाई ऑर्डर टू लो ऑर्डर, लो ऑर्डर टू हाई ऑर्डर, इसको कहते हैं हायरार्किकल. फिर ग्राफ डिस्प्लेइंग द सेट ऑफ लिंक नोड्स, तो ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. वी में डिफाइन डाटा डिस्क्रीट ऑब्जेक्टिव फैक्ट और ऑब्जर्वेशन which are unorganized and unprocessed and therefore have no meaning because of the lack of context and interpretation. देखिए यहाँ पर डाटा का डेफिनेशन है, जो कि डाटा मीन्स क्या होता है, जो अनऑर्गेनाइज और अनप्रोसेस फैक्ट होता है, इसको हम डाटा कहते हैं. ठीक है, वो फैक्ट हो सकता है, सिंबल हो सकता है, सिग्नल हो सकता है, या स्टिमुली भी हो सकता है. Purely form of system perspective data could be bit or byte stored on the communicated by digital system. बीट और बाइट कितना छोटे होते हैं, ये भी हो सकता है. 10 कंप्यूटराइज रिप्रेजेंटेशन इंक्लूडिंग नॉलेज रिप्रेजेंटेशन और काइंड्स ऑफ डाटा, तो ये सब डाटा कैटेगरी में जाएंगे.
फिर जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाटा। डाटा का कैरेक्टर क्या है? सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाटा, इट इज वेरी स्टैटिक इन नेचर। दैट मीन डाटा क्या होता है? स्टैटिक होता है, एक ही जगह रेस्ट होता है। इट में रिप्रेजेंट ए सेट ऑफ डिस्क्रिएट फैक्ट अबाउट एन इवेंट। ठीक है, तो कोई भी इवेंट का डिस्क्रिएट फैक्ट बता सकते हैं हम लोग। इट इज ए प्री रिक्वेस्ट फॉर डेराइविंग इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन डेराइव करने के लिए डाटा हमें चाहिए ही चाहिए। तो डाटा एक बेसिक कंसेप्ट होता है इन्फॉर्मेशन का। फैक्ट एंड फिगर विच रियली समथिंग स्पेसिफिक बट विच आर नॉट ऑर्गेनाइज इन एनी वे एंड विच प्रोवाइड नो फर्दर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पैटर्न्स कॉन्टेक्स्ट एक्सेट्रा। देखिए यहाँ पर फैक्ट और फिगर ये जो डाटा के कैटेगरी में आते हैं आर यूजुअली सीन एज डाटा एंड नॉट इन्फॉर्मेशन। तो जो रॉ फैक्ट होता है, जो अनऑर्गेनाइज फैक्ट होता है, इसको हम डाटा कहते हैं। In more general sense, we could say that distant sound that we hear when we are, say, resting or engaged in some other activities data. If we infer that the sound is that of gunshot or the backfiring of car engine, then it information. देखिए इन्फॉर्मेशन किसको कहते हैं? जो रिजल्ट मिला, डाटा को प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट मिला, इसको हम लोग कहते हैं इन्फॉर्मेशन। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है बैक फायरिंग ऑफ कार और द गन शूट, ये सब क्या इन्फॉर्मेशन में जाएंगे क्योंकि प्रोडक्ट है। डाटा रिप्रेजेंट ऑन ऑर्गेनाइज एंड ऑन प्रोसेस फैक्ट। तो ये इसका प्रॉपर डेफिनेशन है। समटाइम द टर्म रॉ डाटा इज यूज टू रेफर द ऑन प्रोसेस डाटा। तो रॉ डाटा होता है जिसको प्रोसेस नहीं किया जाता है, तो इसको हम कहते हैं ऑन प्रोसेस डाटा। हाउएवर द टर्म रॉ डाटा इज रिलेटिव as the process data which is the output of one process could be raw data from the input for another. The term field data and experimental data are also widely used. Field data is generally used to refer to raw data collected in uncontrolled environment. Geological survey experimental data is generally used to refer the data resulting from साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। देखिए यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंटल डाटा कहाँ से मिलता है हमें? साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने के बाद। वी विल proceed on the understanding data in on process and that when people or the machine process data and derive patterns from it, it become information। ठीक है, डाटा कब इंफॉर्मेशन बन जाता है? प्रोसेस होने के बाद। इन रियल लाइफ सिचुएशन एंड इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन में ऑल्सो हैव टू डिसाइड ऑन द नेचर वॉल्यूम ऑफ डाटा डेट इज रिक्वायर्ड फॉर जनरेटिंग द नेसेसरी इंफॉर्मेशन ऑफ वैल्यू। ठीक है, फिर हम लोग जानते हैं इंफॉर्मेशन। तो ये डाटा के बारे में पता चल गया। सो व्हाट इज डाटा? डाटा इज द रॉ फैक्ट और फिगर, ये जो ऑन ऑर्गेनाइज होता है जो कि रॉ फॉर्म में होता है। ठीक है, फिर हम लोग जानते हैं इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन इन इट्स रेस्ट्रिक्टेड कोनोटेशन रेफर टू प्रोसेस डाटा डेट हैज सम मीनिंग। तो डाटा को प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट मिलता है, जो मीनिंगफुल रिजल्ट मिलता है, इसको हम इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं। ये डायनामिक होता है, पहले से हम पढ़ चुके हैं। जो डाटा क्या होता है? स्टैटिक होता है। इन अ सेंस दैट मैसेज इटसेल्फ इज द इंफॉर्मेशन कन्वे। इन ए टेक्निकल सेंस इंफॉर्मेशन शुड कैरी एंड कन्वे द मैसेज दैट क्लियर सम अनसर्टेनिटी। For data to become information, it must be contextualized, categorized, calculated, and condensed. Information, thus, is data that is processed with relevance and meaning for specific purpose. Information is stimuli that have meaning, relevance in some context for its receiver. For example, for the manufacture of commercial product, information may mean processed data that is indicative of the trend in environment or indicative of the patterns of the sale for a given periods that will help the manufacturer take a certain measure। देखिए इन्फॉर्मेशन क्या होता है? जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है। ए मैन्युफैक्चर क्या कर रहा है? कुछ कमर्शियल प्रोडक्ट जो इन्फॉर्मेशन के माध्यम से इसको प्रोसेस किया गया जो कि हम लोग का सेल्स को बढ़ा सके, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखा गया है। अकॉर्डिंग टू Ecoff, information is essentially found in answer to question that begin with such word as who, what, where, when and how many। जब ये क्वेश्चन पूछेगा हमें जो आंसर मिलेगा वो क्या है? इन्फॉर्मेशन। द वर्ड इन्फॉर्मेशन एज इन द केस विथ मैनी इंग्लिश वर्ड इज डेराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ब
इन्फोमेर मीनिंग द इन्फॉर्म। तो यहाँ पर इसको याद रखिए, इन्फॉर्मेशन कौन सा लैटिन वर्ड से बना है, तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है इन्फोमेर। इन्फोमेर का मतलब क्या होता है, जो कि लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है इन्फॉर्म। ठीक है, ओके। The notion of the information is closely associated with the notion of communication, control data, form, instruction, knowledge, meaning, mental stimuli, pattern perception and representation। ये सभी के लिए हमें क्या चाहिए, कम्युनिकेशन, जो कंट्रोल डाटा, ठीक है। इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड सम ऑफ दिस व्यू पॉइंट एंड द कॉन्टेक्स्ट इन व्हिच दीज आर एम्प्लॉयड। As a technical term, information is used in an extremely wide range of discipline and domain, and each has its own approach and sense in which term is employed. We'll briefly took the some of these। देखिए, तो यहाँ पर कुछ हम इंफॉर्मेशन मॉडल्स जो थ्योरी के बारे में हम पढ़ेंगे, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये फर्स्ट लिखा गया है मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कि सैनन एंड वेबर के द्वारा दिया गया है। देखिए, इसको हम तो कभी भूल नहीं सकते हैं, ठीक है, जो सैनन एंड वेबर वाला लिखा गया है। ओके, सैनन एंड वेबर थ्योरी ऑफ इंफॉर्मेशन व्यू इंफॉर्मेशन इज ए सीक्वेंस ऑफ सिंबल। Information theory is a domain that overlap into mathematical, electrical, electronic, communication engineering, biology, sociology, साइकोलॉजी टू मेंशन फ्यू। तो ये जो सब्जेक्ट का नाम लिखा गया है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन को मेंशन किया जाता है। द प्रिंसिपल एम ऑफ द थ्योरी वाज टू डिस्कवर मैथमेटिकल लॉ that govern the barrier of signal as they transfer or retrieve at the receiving end. It must be realized that Shannon was working for Bell Labs and his primary objective was to optimize transmission of telegraph message without distortion. Some of the most important concepts that emerge from the work of Shannon and Weber is notion of entropy that boldly refer to degree of uncertainty। देखिए, यहाँ पर एक वर्ड लिखा गया है एंट्रोपी। एंट्रोपी मीन्स क्या होता है, जो रेंडमनेस होता है, फ्रीनेस होता है सिस्टम का, इसको एंट्रोपी कहते हैं। यहाँ पर लिखा गया है डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैसेज। तो फ्रीली जो डाटा को अवेलेबल कर सकती हैं वो इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है सैनन एंड वेबर थ्योरी किसके ऊपर बेस है, जो कि मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसको हम कहते हैं ये कम्युनिकेशन का एक मॉडल है। फिर है सिस्टम थ्योरी। सिस्टम थ्योरी ऑफन व्यू इंफॉर्मेशन एज एनी पैटर्न डेट इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अदर पैटर्न्स। दिस व्यू परसीव इंफॉर्मेशन एज ए रिप्रेजेंटेशन एंड डज नॉट नेसेसरली रिक्वायर ए कॉन्शियस माइंड टू परसीव इट। देखिए, तो सिस्टम थ्योरी ने क्या बोला इंफॉर्मेशन का डेफिनेशन, इंफॉर्मेशन एक रिप्रेजेंटेशन है जिसका ऐसे कॉन्शियस नॉट नेसेसरली रिक्वायर कॉन्शियस माइंड, इसके लिए कॉन्शियस माइंड नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल, द इंफॉर्मेशन कोडेड इन पैटर्न ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन द डीएनए इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन लिविंग सिस्टम। तो जो डीएनए इनहेरिटेंस हेरिडिटी के बारे में पढ़े हैं, जिसके थ्रू में ये मैसेज ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। The reference are already been made to information as a sensory causal input. However, in an individual as a psychological being and the social system, group of people, transformation occur as a result of information perceived and information में transfer from knowledge। ठीक है, तो पहले देखिए डाटा के बाद हमें क्या मिला, इंफॉर्मेशन के बाद क्या मिला, नॉलेज। सच ए ट्रांसफॉर्मेशन इज क्रिटिकल। For example, for researcher in the corporate environment to gain the competitive advantage in suggesting that medium is the message. McLuhan also implied the transformation of mindset and behavior of individual triggered by artifact। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एक यहाँ पर एक साइंटिस्ट का नाम लिखा गया है मैकलुहान, HP लुहान। इसके बारे में फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जो कि ये क्या बोले, HP Luhan implied that transformation in the mindset and behavior of individual triggered by artifact। तो ये बताए इंफॉर्मेशन का डेफिनेशन। फिर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ये क्या कहता है, इन LIS इंफॉर्मेशन इच ऑफन सीन ए टर्म और डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड। जब भी हम इंफॉर्मेशन को सोचते हैं LIS में, और डॉक्यूमेंट हो सकता है, रिकॉर्ड्स
are the byproduct of research, business, and transaction. The Committee of Electronic Records of International Committee on Archive define a record as a specific piece of record data information generated, collected, and received in the initiation, conduct, or completion of an activity that comprises sufficient context. ओके ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. इंफॉर्मेशन साइन सिस्टम, जैसे कि साइन को सिंबल के फॉर्म में भी हम इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो कंसिडर्ड इन टर्म ऑफ साइन एंड साइन सिस्टम. द साइंस ऑफ साइन एंड साइन सिस्टम नोन एज सीमियोटिक्स एंड इट ब्रांच इज कॉल्ड प्राग्मेटिक्स. इसको याद रखना है. व्हाट इज सीमियोटिक्स, इसको जानना होगा. जो कि साइन सिस्टम के बारे में जो हम पढ़ते हैं इसको कहते हैं सीमियोटिक्स, और इसका ब्रांच को हम कहते हैं प्रैग्मेटिक्स. ओके, ईच वन ऑफ दिस ब्रांच इज कंसर्न विद द स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन. प्रैग्मेटिक्स इज कंसर्न विद पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन. सेमांटिक इज कंसर्न विद द कॉन्टेक्स्ट एंड द मीनिंग ऑफ मैसेज दैट इज कम्युनिकेटेड. सिंटैक्स इज कंसर्न विद रूल ऑफ लैंग्वेज. ठीक है, सिमेंटिक्स क्या होता है, सिंटैक्स क्या होता है, सभी का डेफिनेशन हमें याद होना चाहिए. देखिए यहाँ पर हम और एक बार इसको समझ लेते हैं. जो प्राग्मेटिक्स होता है क्या होता है, जो सीमेटिक्स का ब्रांच को हम प्राग्मेटिक्स कहते हैं. फिर देखिए प्राग्मेटिक्स इज कंसर्न पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन. फिर सीमेंटिक्स क्या होता है, कंसर्न द कॉन्टेक्ट एंड मीनिंग ऑफ मैसेज. सिंटेक्स्ट क्या होता है, रूल ऑफ लैंग्वेज, जिसमें ग्रामर का यूजेस आ जाता है. एम्पिरिक्स क्या होता है, द स्टडी ऑफ सिग्नल यूज टू कैरी मैसेज. ठीक है, सिग्नल का जो कैरी करना है इसको एम्पिरिक्स कहेंगे. एच act of communication normally take place within the social context which determine the purpose of communication. Consider for example a subject heading in a bibliographic record in an opaque. The library, the parent organization and patrons served by the library set the social context for all tool and service developed by library including OPAC. Pragmatics, the intention of the message is to convey a precise and unambiguous idea of subject of document represented by bibliographic record. ठीक है, हम लोग जानते हैं नॉलेज क्या होता है. जो सबसे छोटा यूनिट है डाटा, डाटा के बाद इंफॉर्मेशन मिलता है, इंफॉर्मेशन के बाद हमें नॉलेज मिलता है. व्हाट इज नॉलेज हैज बीन सब्जेक्ट ऑफ एन ऑनगोइंग डिबेट अमंग द मेनी डिसिप्लिन ग्रुप. फिलोसोफर, नॉलेज मैनेजर, रिलीजियस प्रोफेशनल एटसेट्रा. Definition of knowledge refer to information having been processed, organized or structured in the same way or else being applied or put into action. जब भी हम इंफॉर्मेशन को एक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो इसको नॉलेज कहा जाता है. नॉलेज कुड बी इम्प्लिसिट, टैक्टिक का एग्जांपल क्या है, देखिए यहाँ पर स्किल, एक्सपर्टीज. एक्सप्लिसिट जो कि डॉक्यूमेंटरी. Knowledge is also a major tenet of many religions. The Bhagavad Gita, for example, referred to Jnana Yog. There is also notion of the scientific knowledge where the emphasis is on the procedure and methodology employed for generating knowledge. Knowledge acquisition involve cognitive. देखो नॉलेज को कैसे एक्विजिशन कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ लिखा गया है. ये कॉग्निटिव हो सकता है या परसेप्शन, कम्युनिकेशन, एसोसिएशन, रीजनिंग, इसके थ्रू में नॉलेज को एक्वायर कर सकती हैं. नॉलेज इटसेल्फ इज द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी इन सम डिसिप्लिन. एपिस्टोमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी दैट हैज एज इट फोकस्ड द स्टडी ऑफ नॉलेज. इट इन्वेस्टिगेट द नेचर एंड ओरिजिन ऑफ नॉलेज. For epistemologist, knowledge is justified to believe the universe of knowledge has been area of interest in the library and information study. The various modes by which the new subject, idea or form have implication of knowledge organization. S.R. Ranganathan and his associate have identified several different modes of formation subject. ये हम मॉड्यूल से आगे पढ़ेंगे. मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे. फिर अभी हम पढ़ते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नॉलेज. ठीक है, हम लोग जानते हैं डेफिनेशन ऑफ नॉलेज के बारे में. देखिए नॉलेज में भी डिफाइंड एज ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट मैटर दैट हैज
been acquired through proper study and experience, usually based on learning, thinking and the proper understanding of problem. तो ये रहा नॉलेज का डेफिनेशन. In a way, knowledge is derived from information. In the same way, information is derived from data. पहले से हम लोग पढ़ चुके हैं. सबसे ये स्मॉलेस्ट यूनिट डाटा है, डाटा के बाद इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के बाद नॉलेज. Knowledge constitute an understanding of information based on its perceived importance of relevance to the problem area by integrating human perspective. Process that help draw meaningful conclusion. Knowledge refer to both theoretical and practical understanding of subject. तो knowledge क्या सो करता है? theoretical practical. but information जो कि हम लोग का अंडरस्टैंडिंग को शो करता है. Knowledge is an abstract notion, and some have suggested that to capture the knowledge in symbolic form is to transform into information, as all knowledge is tactic. One definition of knowledge that captures some of the various way in which it has been defined by other. देखिए यहाँ पर नॉलेज का प्रॉपर डेफिनेशन और समझ लेते हैं. नॉलेज इज ए फ्लूइड ऑफ मिक्स ऑफ फ्रेम एक्सपीरियंस, वैल्यूज, contextual information, expert insight and grounded intuition that provide an environment and framework for evaluating and incorporating new experience and knowledge information. जो नॉलेज क्या होता है? जब हम न्यू एक्सपीरियंस या इन्फॉर्मेशन पाते हैं तो हमारे माइंड के अंदर इसको हम जो ग्राउंडेड इंट्यूशन करते हैं, जो कि इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं, इसको हम कहते हैं नॉलेज. It originates and is applied in the mind of knowers. In organization, it often becomes embedded not only in the document and repository but also in the organizational routine. Kinds of knowledge. Knowledge के types देख लेते हैं. Knowledge is classified on the basis whether it is procedural, declarative, semantic और episodic. देखिए इसका बहुत सारे types of knowledge होते हैं. Procedural knowledge represent the understanding of how to carry out a specific process. इसको हम कहते हैं प्रोसीजरल नॉलेज, जो कि कौन सा प्रोसेस से काम हो रहा है. फिर डिक्लेरेटिव नॉलेज, इट इज रूटीन नॉलेज अबाउट विच द एक्सपर्ट इज कॉन्शियस. इट इज शैलो नॉलेज दैट कैन बी रेडिली रिकॉल्ड, सिट इन कंसिस्ट ऑफ सिंपल एंड अनकॉम्प्लिकेटेड इंफॉर्मेशन. दिस टाइप ऑफ नॉलेज ऑफन रिसाइड इन शॉर्ट टर्म मेमोरी. जो डिक्लेरेटिव नॉलेज होता है ये शॉर्ट टर्म मेमोरी में अवेलेबल होता है. फिर सिमांटिक नॉलेज, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इट इज हाईली ऑर्गेनाइज चॉन्क नॉलेज डैट रिसाइड मैनी लॉन्ग टर्म मेमोरी. सिमांटिक नॉलेज लॉन्ग टर्म मेमोरी. सिमांटिक नॉलेज कैन इंक्लूड मेजर कॉन्सेप्ट, वोकाबुलरी, फैक्ट या रिलेशनशिप हो सकता है. जो एपिसोडिक नॉलेज क्या होता है? इट रिप्रेजेंट द नॉलेज बेस्ड ऑन एपिसोड. एपिसोड मीन्स एक्सपेरिमेंटल इंफॉर्मेशन विच एपिसोड इज चॉन्क फॉर लॉन्ग मेमोरी. ठीक है, तो ये था टाइप्स ऑफ नॉलेज. प्रोसीजरियल नॉलेज जो प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है. डिक्लेरेटिव जो कि शॉर्ट टर्म होता है. सेमांटिक लॉन्ग टर्म होता है. एपिसोडिक जो कि ये भी लॉन्ग टर्म होता है. अनदर क्लासिफिकेशन नॉलेज. फिर टैक्टिक एंड एक्सप्लिसिट. टैक्टिक नॉलेज किसको कहेंगे? इट इज़ अ नॉलेज दैट यूजुअली गेट्स एम्बेडेड इन ह्यूमन माइंड. एक्सपीरियंस के थ्रू जो हमें नॉलेज मिलता है उसको हम टैक्टिक नॉलेज कहते हैं. और एक्सप्लिसिट नॉलेज क्या है? देखिए जो इट इज़ द नॉलेज दैट इज कोडिफाइड एंड डिजिटाइड इन डॉक्यूमेंट, बुक, रिपोर्ट और स्प्रेडशीट. ठीक है, जो हमारे माइंड के अंदर जो रहता है इसको हम टैक्टिक नॉलेज कहते हैं. लेकिन जो डॉक्यूमेंट के अंदर जो नॉलेज रहता है इसको हम लोग कहते हैं एक्सप्लिसिट नॉलेज. देयर आर दोज who argue that explicit knowledge is information and all knowledge is tactic. ठीक है, तो जितने सारे नॉलेज हैं ज़्यादातर टैक्टिक हैं. विकीपीडिया लिस्ट द फॉलोइंग टाइप ऑफ नॉलेज. तो यहाँ पर बहुत सारे नॉलेज के बारे में क्लासिफिकेशन किया गया है, जैसे ए प्रियोरी, ए पोस्टरी नॉलेज, डिस्क्रिप्टिव नॉलेज, एक्सटेंजेलियंस, एक्सपीरियंस, लिब्रे नॉलेज, मेटा नॉलेज, प्रोसीजरियल नॉलेज, सेल्फ नॉलेज, टैक्टिक नॉलेज. ठीक है, फिर हम लोग जानते हैं नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन क्या है. वन ब्रांच ऑफ एलाइस डेट हैज डील्ड विद द नोशन ऑफ नॉलेज इन नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, ए टर्म ब्रॉट इनटू वाइड यूज एंड द एक्सेप्टेंस ऑफ जर्मन क्लासिफिकेशनिस्ट इन यूट्रेट दलबर्ग. She considered knowledge as known as Sarvanathan in the most of his writing
preferred to use the term universe of subject rather than universe of knowledge. Dalberg went on to suggest that knowledge may be transferred in space and time. This is a purely pragmatic view of knowledge, as in this view, knowledge exists only in the human dimension. It is largely driven by requirement of knowledge organization. A more comprehensive approach that serves as a framework of knowledge in the LIS has been provided by हाजोलांड, who lists the four basic epistemological preposition. इसको याद रखना है, जो कि जेरोलैंड ने दिया था. फोर बेसिक एपिस्टोमोलॉजिकल प्रीपोजिशन क्या है जानते हैं. पहले है एम्प्रिसिज्म, डेराइव फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, परसेप्शन, एक्सपीरियंस. जो ऑब्जर्वेशन के थ्रू, परसेप्शन के थ्रू जो मिलता है इसको हम कहते हैं एम्पिरिज्म. रेशनलिज्म, डेराइव फ्रॉम एम्प्लॉइंग लॉजिक एंड रीजन फॉर द सेंसरी एक्सपीरियंस. फिर हिस्टोरिसिज्म, डेराइव फ्रॉम कल्चरल हर्मेनेटिक्स. और फिर प्रैग्मेटिज्म, डेराइव फ्रॉम कंसिडरेशन ऑफ गोल्स एंड देयर कॉन्सिक्वेंस. ठीक है. Knowledge is what we know. Our brain built a map of what all we know. Knowledge of X is not same as knowledge of Y. तो knowledge अलग अलग होते हैं. Universe of knowledge is totally of all that is known to mankind at any point of time. This also change as human being discover and find new thing, change their understanding of thing, known them to etc. ठीक है. The signal from our sense organ keep altering the map. Empirical knowledge is based on solid evidence, what is understood through the positivist approach. Rational knowledge is that which is known by reasoning. It is able to link knowledge, unit and reason. ठीक है. फिर हम लास्ट पॉइंट जो है, डाटा इंफॉर्मेशन नॉलेज के बीच में क्या डिफरेंस है या क्या सिमिलरिटी है देख लेते हैं. The use of three terms is not considered and often conflicting. For instance, data and information are often used interchangeably in computing. Clearly, there are competing definitions and different perspectives of data, information, and knowledge in different aspects of computer science and engineering. In other disciplines such as psychology, management science, and epistemology, एकअप डिफरेंशिएट दम फॉलो. तो एकअप ने क्या किया, इसको इसके बीच में कुछ जो डिफरेंस है इसको लिखा है, जिसकी इन्फॉर्मेशन किसको कहते हैं. देखिए एकअप के हिसाब से डाटा प्रोसेस टू बी यूजफुल प्रोवाइडिंग द आंसर टू हु, व्हाट, वेयर एंड वेयर. ये क्वेश्चन का जहाँ पर आंसर मिल जाएगा इसको हम क्या कहेंगे, इन्फॉर्मेशन. फिर देखिए नॉलेज किसको कहेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डाटा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड आंसर हाउ. जैसे हाउ एक टर्म आ जाएगा क्वेश्चन बनाने में, तो इसको हम कहते हैं नॉलेज. ठीक है. ये डाटा देखिए, ये पिक्चर से हम लोग देख सकते हैं. सबसे छोटा यूनिट क्या है, डाटा, फिर इंफॉर्मेशन, फिर नॉलेज, फिर विजडम. विजडम इज द टॉप इन आवर हायरार्की. The data information knowledge wisdom hierarchy is a popular model for classifying human understanding in perceptual and cognitive space. Its origin go back to English poet T.S. Eliot. देखिए T.S. Eliot ने क्या बोले हैं, where is information lost in data, knowledge lost in information, and wisdom lost in knowledge. तो ये लाइन से हम लोग समझ सकते हैं डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम का क्या यहाँ पर रोल है. ठीक है. एविडेंटली द टर्म आर इंटरप्रिटेड इन सेवरल डिफरेंट वे एंड देयर इज नो वन definition of such of this term that is universally accepted. The definition are also function of disciplinary perspective from which teacher will look at, for example, computer science, knowledge management, knowledge organization, cognitive science. Alan Frost has attempted an abstraction of definition which captures the essence of data. देखिए यहाँ पर डाटा क्या होता है, फैक्ट एंड फिगर विच रियली समथिंग स्पेसिफिक बट विच आर नॉट ऑर्गेनाइज इन द वे. इन्फॉर्मेशन किसको कहते हैं, कॉन्टेक्चुअलाइज, कैटेगराइज, कैलकुलेट एंड कॉन्टेक्स्ट डाटा को हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं. नॉलेज किसको कहते हैं, नो हाउ, अंडरस्टैंडिंग, एक्सपीरियंस, इंसाइट, इनोटिएशन एंड कॉन्टेक्चुअलाइज इन्फॉर्मेशन को हम कहते हैं नॉलेज. ठीक है. देखिए ये पिक्चर से और हम अच्छे समझ सकते हैं
सबसे छोटा यूनिट डाटा। जब इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं इन्फॉर्मेशन हो जाता है। इन्फॉर्मेशन को पैटर्न्स में जब इसको अंडरस्टैंड करते हैं नॉलेज हो जाता है। जब इसको प्रिंसिपल में अंडरस्टैंड करते हैं इसको हम कहते हैं विजडम। ठीक है, तो ये था डाटा, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम के बारे में स्टडी। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक टॉपिक था जो आज हम पढ़े हैं। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मॉड्यूल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।